actually hard to find biblical scholars with whom to compare John Goldingay. It's also difficult to sort out the kinds of adjectives you might use to describe John Goldingay, in large part because we live in an age of specialization, and yet here is a scholar who has the grasp of biblical studies, Old and New Testament, and the theology that surrounds them. Here's a biblical scholar whose profound level of scholarship is forever in the service of the church. Here's a biblical scholar who never forgets that the chief aim of good biblical scholarship is proclamation, the incarnation of the Word in people's lives. In fact, one of the most impressive parts of John Goldingay's scholarship is his non-apologetic, non-defensive approach to reading Scripture as a believer firmly embedded in the church. Having worked with him these several years, having stood with him shoulder to shoulder, what I can tell you is that he is as advertised. Daniel chapter 4. King Nebuchadnezzar sent the following letter to the people of all nations and races on the earth. Greetings to all of you. I am glad to tell you about the wonderful miracles God Most High has done for me. His miracles are mighty and marvelous. He will rule forever, and his kingdom will never end. I was enjoying a time of peace and prosperity when suddenly I had some horrifying dreams and visions. Then I commanded every wise man in Babylonia to appear in my court, so they could explain the meaning of my dream. After they arrived, I told them my dream, but they were not able to say what it meant. Finally, a young man named Daniel came in, and I told him the dream. The holy gods had given him special powers, and I had renamed him Belteshazzar, after my own god. I said, Belteshazzar, not only are you the wisest of all advisors and counselors, but the holy gods have given you special powers to solve the most difficult mysteries. So listen to what I dreamed, and tell me what it means. In my sleep, I saw a very tall tree in the center of the world. It grew stronger and higher until it reached to heaven and could be seen from anywhere on earth. It was covered with leaves and heavy with fruit, enough for all nations. Wild animals enjoyed its shade, birds nested in its branches, and all creatures on earth lived on its fruit. While I was in bed, having this vision, a holy angel came down from heaven and shouted, Chop down the tree and cut off its branches. Strip off its leaves and scatter its fruit. Make the animals leave its shade and send the birds flying from its branches. But leave its stump and roots in the ground, surrounded by grass and held by chains of iron and bronze. Make sure that this ruler lives like the animals out in the open fields, unprotected from the dew. Give him the mind of a wild animal for 7 long years. This punishment is given at the command of the holy angels. It will show to all who live that God Most High controls all kingdoms and chooses for their rulers persons of humble birth. Daniel, that was the dream that none of the wise men in my kingdom were able to understand. But I am sure that you will understand what it means, because the holy gods have given you some special powers. दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला कि तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। तुमको अच्छा लगा
कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिए हैं उनको प्रकट करो। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में जिसमें रहता था चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानियल मेरे सन्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बताया कि हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैं देखा है उसे फल समेत तुझे बताकर मुझे समझा दे। पलंग पर जो दर्शन मैंने पाया वह यह है, अर्थात मैंने क्या देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है जिसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बढ़ बढ़कर दृढ़ हो गया, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता है। उसके पत्ते सुंदर है और उसके फल बहुत है, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन है। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती है और उसकी डालिया में सब आकाश की चिड़िया बसेरा करती है और सब प्राणी उसके आहार पाते हैं। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा कि वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके डुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, पशु ही का सा बन जाए और 7 काल उस पर बीतने पाए। यह नियम पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। और उसकी यह मनसा है कि जो जीवित है सो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है और तब उस पर नीच से नीच जाति को भी नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई और पंडित तो इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। We now going to look at Daniel chapter 4, which is a strange story about how Nebuchadnezzar, the king, gets turned into someone who is acting really rather like an animal. But the chapter itself is a kind of testimony that Nebuchadnezzar gives. अब हम दानियल के पुस्तक के 4थे अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और उसके अंदर हम देखने वाले हैं ये बहुत ही अनजान प्रकार की, ये बहुत ही अलग प्रकार की कहानी यहाँ पर लिखी गई है, जहाँ पर नबूकदनेस्सर एक व्यक्ति होते हुए भी एक जानवरों की तरह वो बर्ताव कर रहा है और ये अपने आप में एक गवाही भी है जो नबूकदनेस्सर हमारे सामने रख रहा है। So this is Nebuchadnezzar looking back on something that he's been through and testifying to the way that God rescued him. और यहाँ पर नबूकदनेस्सर जो है वो
इतिहास में पीछे की घटनाओं को देख रहा है जो हो चुकी है और उसकी गवाही आज हमारे सामने रख रहा है। Nebuchadnezzar is someone who is a perfect illustration of the way it's virtually impossible for someone in a position of power to avoid corruption. और नबूकदनेस्सर जो है वो एक बहुत ही सिद्ध उदाहरण है हम सब के लिए कि ऐसे ऐसे उदाहरण को देख के हम ये समझ सकते हैं कि सचमुच में ये असंभव है कि कोई कोई भी प्रकार का व्यक्ति जो सामर्थ्य में हो, जो सत्ता में हो, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं रह सकता है। Because you are important, you get to think of yourself as important. क्योंकि तुम महत्वपूर्ण हो, इसलिए तुम अपने आप के मन में भी आप सोचते हो कि तुम महत्वपूर्ण हो। In this chapter, Nebuchadnezzar tells us about another dream that he had, a dream of a tree. और यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर एक और उसके स्वप्न के बारे में बात करता है, एक ऐसा स्वप्न जिसके अंदर वो पेड़ को देखता है। The symbolism of the tree, which stands for Nebuchadnezzar, makes the point about the importance of the emperor. और यहाँ पर जिस चिन्हात्मक रीति से उस पेड़ का वर्णन किया गया है वो नबूकदनेस्सर खुद के बारे में, उसके खुद के राज्य के बारे में दिखाया गया है। The king of Babylon really matters. He makes a difference. He's key to his empire's survival and thriving. They shelter under him like a tree. और यहाँ पर जो बाबिलोन का राजा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे बहुत ही फर्क पड़ता है आजू बाजू के राज्यों में भी, क्योंकि ये ऐसा एक राजा है जो सचमुच में पूरे साम्राज्य को चलाता है, उसे जिलाता है। और इसीलिए एक राजा जो ये जो बाबिलोन का जो राजा है वो एक पेड़ के समान सबको छांव देता है। In light of the leader's importance, any country expects its people to respect the leader, the monarch, the president. और अगर हम देखें, अगर कोई भी अगवा जो है वो अगर इतना महत्वपूर्ण हो तो ये अपेक्षित है उसके हर एक प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए भी, कि वो अपने राजा या फिर उनका जो राष्ट्रपति हो या फिर जो उनका जो अगवा हो वो उनको सम्मान दे। We may not respect the particular individual who holds the office. We are expected to respect the office. हमें यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि शायद हो सकता है कि हम उस व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पे हम उसको मान ना दे, परंतु वो व्यक्ति जिस सत्ता पे है उस सत्ता को हमें मान देना है। But when you are the person who holds the office, the monarch or the leader or the president, then it becomes harder for you to maintain that distinction between people respecting you and respecting the office. परंतु आप जब स्वयं उस सत्ता पे हो, आप ही अगर वो सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, आप ही अगर वो राष्ट्रपति या फिर राजा हो, तो शायद आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप इसका अंतर समझने पाए कि जो लोग हैं वो आपकी वाहवाह या फिर आपको सम्मान नहीं दे रहे, परंतु आप जिस सत्ता पे हैं उस सत्ता को सम्मान दे रहे। Nebuchadnezzar loses the distinction between people respecting the office and people respecting him in particular. और यहाँ पर नबूकदनेस्सर जो है वो भी इस अंतर को भूल जाता है कहीं ना कहीं कि लोग सचमुच में उसको नहीं परंतु उस सत्ता को मान दे रहे थे। There is a sense in which it's quite proper to be proud of your achievements as a president or a monarch or a leader. There's a right sort of pride and a wrong sort. और यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर आप राजा है या फिर राष्ट्रपति है या फिर किसी भी देश के अगुवे है और अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने कार्यकाल के अंदर अगर कुछ सिद्धियां प्राप्त की है तो उन सिद्धियों के लिए थोड़ा घमंड होना वो ठीक भी है, परंतु ये जो घमंड है वो भी सही प्रकार का भी होता है और गलत प्रकार का भी होता है। Nebuchadnezzar falls into the wrong sort of pride. परंतु यहाँ पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर जो है वो गलत प्रकार के घमंड की तरफ अपने आप को ढलान देता है। Now, it isn't always the case that a leader who gets to think of himself as important or who fails to be faithful pays the price for doing so. और ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई भी अगवा या फिर कोई भी राष्ट्रपति या फिर कोई भी राजा जो अपने मार्गों में धर्मी रीति से न चला हो और अधर्म उसने किया हो, अविश्वासु वो रहा हो, हमेशा वो निष्फल हो जाएगा या फिर उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। But it can happen,
and Nebuchadnezzar has a dream that warns him about the possibility that he may get into trouble, may pay the price. परंतु यहाँ पर ये नबूकदनेस्सर की कहानी में हम देखते हैं कि उससे विपरीत होता है। नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि तू अपने मार्गों को सीधा नहीं करेगा तो तेरे साथ भी वैसा ही कुछ बुरा होने वाला है। There's somebody who appears in the dream who is usually referred to as an angel, but an angel is a kind of member of God's staff, one of God's aides, one of God's envoys, who does things on God's behalf. और यहाँ पर हम देखते हैं उस स्वप्न के अंदर उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखता है और प्रभु के वचनों में ऐसा लिखा है कि वो तो दरअसल में एक दूत था, एक ऐसा दूत जिसको परमेश्वर की मंडली में से, परमेश्वर की उपस्थिति में से परमेश्वर का जो संदेश था वो उसे बताने के लिए वहां पर भेजा गया था नबूकदनेस्सर के पास। And in this dream of Nebuchadnezzar, one of these angels, these envoys, these aides, appears and declares that there is going to be judgment, that the tree that stands for Nebuchadnezzar is going to be cut down. और यहाँ पर इस स्वप्न के अंदर हम देखते हैं जो दूत या फिर जो परमेश्वर का सहकार्य या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में से आया हुआ जो दूत था वो आके नबूकदनेस्सर को ये बोलता है कि अब सचमुच में तेरा अंत नजदीक है, क्योंकि जो पेड़ जो तेरे चिन्ह के लिए वहां पर खड़ा है उस पेड़ को अब काट देने वाले हैं परमेश्वर। And in the dream, this angel, this aide, says that the judgment on Nebuchadnezzar is definite and inevitable. और वहां पर जो दूत जो खड़ा है परमेश्वर की ओर से आया हुआ, नबूकदनेस्सर को स्वप्न में वो उसे कहता है कि जो नबूकदनेस्सर के ऊपर जो न्याय आने वाला है वो निश्चित है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। But there's something paradoxical about when God, through a prophet or an angel, declares that something is definite and inevitable. और यहाँ पर कुछ तो रहस्यमय बात हमारे सामने रखी जाती है जब परमेश्वर जो है अपने दूत के द्वारा या फिर नबी के द्वारा जब बताते हैं कि न्याय अनिवार्य है। The point about saying that something terrible is going to happen is in order to push people towards repenting. और ऐसा कहना कि भाई तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर तेरा न्याय होने वाला है, इसका मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति को या फिर उस समुदाय को आप धक्का दे रहे हो कि भाई तुम पछतावा करो, पश्चाताप करो ताकि तुम बचा लिए जाओ। And if people respond to God's threats about things that are inevitable by repenting, then they stop being inevitable. और अगर लोग भी अगर पश्चाताप करते हैं, अपने पापों की कबूलात करते हैं, तो वो जो आने वाला जो अनिवार्य न्याय है वो न्याय से वो लोग बच सकते हैं। The story of Jonah illustrates the point. और यहाँ पर यूना की जो कहानी है, यूना की कहानी हमारे लिए एक उदाहरण समान है। Jonah told Nineveh that judgment was coming, and he gave no hint that there was a way out. और यूना की कहानी में भी हम देखते हैं कि वो निनवे से कहता है, निनवे के लोगों से कहता है कि न्याय तुम पर आने वाला है, परंतु वो कोई भी रीति से निनवे के लोगों को वो मार्ग नहीं बताता है कि वो न्याय से वो लोग कैसे बच पाएंगे। But Jonah knew, and maybe the Ninevites knew, that if they repented, then things could be different. और यूना को पता था और शायद निनवे के लोगों को भी पता था कि यदि वे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो शायद रास्ता निकल सकता है। In this story, part of the point about God sending the dream to Nebuchadnezzar is to get him to change so that the warning in the dream needn't come true. और यहाँ पर भी ये जो स्वप्न के अंदर जिस प्रकार की चेतावनी नबूकदनेस्सर को दी गई है, वो नबूकदनेस्सर को चेतावनी देने के द्वारा परमेश्वर बताना चाहते थे कि भाई तेरे ऊपर जो न्याय आने वाला है वो न्याय टल सकता है यदि तू अपने पापों का पश्चाताप करेगा और तू बचा लिया जाएगा। But Nebuchadnezzar can't see the point and doesn't see the nature of this challenge. परंतु यहाँ पर नबूकदनेस्सर जो है इस बात में कोई तथ्य नहीं पाता है और जो चुनौती उसके सामने थी वो नहीं समझ पाता है। And a bit the same as was the case with the dream in chapter 2, the other experts of his don't care for the idea of explaining to the king what God is expecting of him. और यहाँ पर जो दूसरे अध्याय में फिर हम देखते हैं वही विशेषज्ञों की बात, सलाहकारों की बात,
वे लोग भी इस नबूकदनेस्सर को समझा नहीं पाते हैं कि जो सत्य है वो क्या है और किस तरह से वो उसमें से निकल सकता है। That's the end of our study of the first half of Daniel chapter 4. Now we'll go into the second half of that chapter, in which we'll see what happens subsequently. और ये चौथे अध्याय के पहले भाग के जो अभ्यास था उसका अंत था। अब इसके बाद के सेशन में हम दानियल 4 और उसके दूसरे भाग को देखने वाले हैं।